Welcome to part 2. Now we are going to focus on the complete tenses with the formulas and all. So let's start with this. Before starting that, let me know this fact that this is mantra, and you always know, being the residents of India, you know the culture of Vedics. You know there are a number of things, but mantra is something, and actually it is an English word. So you can see the part of Sanskrit. Jungle is something like that. Shampoo is something like that. Let it be. Mantra, that means the solution for everything. In tenses, you will be having the mantra. Okay? And that will be this. This is simply nothing but singular and plural. ये एक वचन और अनेक वचन का एक गट्ठा है जो आपको कई सारी चीजें टेंस में समझने के लिए बहुत जगह पे काम आता है. Almost in every sentence. So just focus on this. Mantra of this says like singular and plural. Into this, I, we, you, he, she, it, and they. अगर इसको बहुत ही साइंटिफिक वे में समझना है तो दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स लिमिटेड टू मी. सो मी और प्लूरल होगा हम, मैं और हम. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, third person singular, third person plural. But here we have to think about few things which are not that much easy to understand. Okay, he, she, it, along with the nouns, okay, which are singular, all will be here. So बहुत ही ध्यान देने लायक बात है ये. He, she, it ही नहीं, इसके साथ जितने भी nouns होंगे वो यहाँ पे होंगे. And after that they will show the plural. Okay, so plural and singular, this is a simple mantra and the box of the mantra which will be useful in every sentence for you. First of all. Second, we are going to focus on the formulas too. Okay, so we are not going to see simple present tense and then it's okay. Then we will be seeing this as a comparative note. Okay, and for that matter we'll be going with this. The main tenses are three. Okay, we should not say tenses as I particularly criticize that. So it is tense, and these are the three stages of the tense. Very simply, first one is past. Okay, second one is present, and third one is much popular, is future. That is future. Okay, so past, present and future. So we are having three stages of tense. Come again with this. Tense, ये उनके तीन अलग अलग स्टेजेस है. कुछ जो पहले हो चुके हैं, कुछ जो अब भी हो रहे हैं, और कुछ जो आगे होने वाले हैं. तो very simply these things are past, present, future. They are the stages of the tenses. Okay, we'll be going very short with this. Let me remove this one, as we are going to see this later, and this one. The same with this too. Now we have these V1, V2, V3, V4. So all have here in your mind. I told you, always come up with your notebook and pen and pencil. Okay, so first part was there, and we have seen so many things. Okay, now this is second part, and we have to think about the present tense completely. Okay, comparatively we'll be going with this. Formulas are there. Very first one is simple present tense. Okay, second is present continuous tense. Third one is present perfect tense, and the fourth one present perfect continuous tense. Very simply. Now we have formulas in our hands. Okay, we'll be going with that. The very first formula that tells us is like subject plus V1. Focus on this. For your ease, I'll be writing it here. V1, V2, V3 and V4.
very simply. So these are the things. Now subject plus V1 plus object. And very simply, we're not going to do anything else. We are just taking one simple example and we will be carrying for all of them. इसीलिए नहीं कि हमारे पास सब्जेक्ट कम है क्या, कितने सारे नाम पड़े. सेकेंड, वी डोंट हैव लेस वर्ब. ओके, वर्ब के बारे में भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड थर्ड, ऑब्जेक्ट तो कमाल है. ओके, इसीलिए स्टिल वी आर जस्ट गोइंग विद वन सेंटेंस सो दैट you and we can understand the timeline of this. Okay, very simple. Now subject, and this one is here for example. Okay, subject V1 plus O, object, very simple. Chintu. V1, we will be taking that one. Okay, eats, focus on this, this is very important. खास करके जब S लगता है या ES लगता है, we will be seeing all that. Eats, object, a mango. Okay, subject stand for Chintu, V1 stands here as eats and object stands here as a mango. Very simply, अगर मैं इसको बदल दूं तो ये भी बदलेगा. क्यों, कैसे? We'll be seeing this. When I said that he, she, it and other nouns which are in singular form, they are here third person singular. Simple present tense का आपको ध्यान में रखने लायक चीज यही है कि आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, मतलब सारे के सारे नाउन, आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी नाउन. ओके, कलेक्टिव नाउन वहां पे आएगा, मटेरियल नाउन वहां पे आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वहां पे आएगा, प्रॉपर नाउन वहां पे आएगा, कॉमन नाउन वहां पे आएगा. तो ईच एंड एवरी नाउन विल बी कमिंग देयर. एंड इफ दे आर इन सिंगुलर फॉर्म तो एस और ई एस वर्ब के आगे लगेगा. अगर ईट है तो ईट्स लगेगा, अगर रन है तो रन्स लगेगा. इसीलिए वी विल बी हैविंग दिस सेक्टर डेफिनेटली. एंड इसीलिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक ही टेंस के लिए ई एस और एस का फैक्टर है, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक सब टाइप उसका. बराबर. We'll be seeing this. Chintu eats a mango. अगर फॉर्मूला के साथ चले जाए तो वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. एंड आई टोल्ड यू कि आपको ध्यान में रखना है, आपको मगअप नहीं करना है. सो फॉर दैट सेट वी कैन से दैट Chintu eats a mango is a very simple sentence, but it gets confused as it goes ahead and ahead. We'll be seeing this. Same sentence will be carrying on. Formula we all know. If you don't know, we'll be telling it here. Subject plus am is are plus V4 plus object. Subject is here, am is are. Remember we have learned before that to be के कुछ स्वरूप है. Okay, and those forms of to be were in present tense, they were also in past, they were also in future. So same thing, we will be only taking this present because we are learning present. Present पढ़ रहे इसलिए present के ही लेंगे. तो to be के स्वरूप ले रहे हैं, am is और are. बराबर. Subject am is are plus V4 eating. Okay, ing इसको लगेगा, वो सारा का सारा V4 बन जाएगा. थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये सब हम अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग दिस जस्ट टू मेक श्योर कि बारीक बारीक सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमें इनके ऊपर गौर करना है. तो इसीलिए एम इज आर प्लस V4 प्लस ओ, इसको हम जरा सेंटेंस में डाल देते हैं. सेंटेंस चेंज नहीं करना है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि टाइमलाइन कैसे चल रहा है, कंपैरेटिवली कैसे टेंस को पढ़ सकते हैं. तो हियर व्हेन वी से Chintu is eating a mango, you can check the sequence of this formula. Chintu stands for S. Am is are में से is क्यों लिया? am तो ले नहीं सकते because you know that कि am सिर्फ एक ही बंदे के साथ जाता है, और वो है मैं, मतलब आप, मतलब I. Okay. Second is are. हम उसके बारे में नहीं सोचते थे बिकॉज हमने सोचा पहले ही कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल के साथ जाने वाला उसके लिए आर अवेलेबल है, इसलिए बचता सिर्फ एक है और वो है इज.
इसीलिए एमिज़र में से कौन सा लेना, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चिंटू इज V4 ईटिंग, वेरी सिंपली, हम कुछ अलग नहीं कर रहे, आपके सामने सब कुछ है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप आपके नोटबुक में ये सब उस हिसाब से लिख रहे हो। सो चिंटू इज ईटिंग अ मैंगो, अ मैंगो हियर स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट which was already in previous sentence. Okay, we'll be going for the next one. Okay, third one says with the formula like subject plus has plus oblique have plus V3 plus O। एग्जाम्पल के साथ चले जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता अब फॉर्मूलाज के अंदर कोई कंफ्यूजन है, हमें ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म्स पता है। O stands for object, V 1 2 3 4 we know that, have has part of formula, so we have to remember this, and subject। now Chintu has, क्यों have नहीं आएगा, सोचेंगे। Chintu has eaten a mango, very simple, why not, he she it, and the nouns all of them if they come in singular form, I am saying and repeating again and again, आते हैं तो वहां पे हम has यूज करेंगे बजाय have के। उसके अलावा I के साथ have आएगा, we have, you have, यहाँ पे he she it, और जो भी singular nouns आएंगे जो भी उनके साथ has, और बचा हुआ they उसके साथ भी have। इसीलिए don't think about have, has कहाँ पे आएगा इतना फोकस करो, have तो हर जगह पे है, फिर I वो ये सब जगह पे, बराबर। इसलिए यहाँ पे नाम आया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था, चिंटू एक ही बंदा है ना भाई, इसीलिए हैज आया। चिंटू हैज ईटन अ मैंगो, वेरी सिंपल। ओके, व्हाई ईटन, बिकॉज हियर इन फॉर्मूला दे आर सेइंग V3, so just like that. Now the last but not the least is subject plus has oblique have been plus V4 plus object. Okay, with the formula we will be continuing the same sentence। चिंटू को हमेशा साथ में रखते हैं, so चिंटू as we have seen यहाँ पे has यूज किया, तो obviously यहाँ पे भी has been, it's a part of formula, so we have to take as it is। चिंटू has been eating a mango। Now see this, this is a sequence which will tell you the timeline of a tense, sorry। Now when we say about this present tense, ये चारों के साथ यहीं पे खत्म होता है, बहुत ही सिंपली। अब हमने ये फॉर्मूला के साथ देखा, we'll be just making it sure के चेंजेस क्या है भाई। ओके, here present tense when it says about simple present tense, तो सिंपल बोलने के बाद साधा और ऐसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। we have studied before, हमने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो अब ध्यान देंगे। simple present tense is telling about the current situation, not current process, very very small difference is there, and that is why people are getting often they are getting confused between these two, I mean simple present tense and present continuous tense। very simply, if I am saying Chintu eats a mango, does that mean कि he's eating mango? He's not eating it, it is not processed, but these are days of summers, so he is eating, he eats mango, sometimes suddenly he eats mango। तो this is a process, जिसको अगर हम हिंदी में कहना चाहें तो ये अभी मेरे वर्तमान के बारे में बताता है, पर मेरे अभी के फिलहाल के प्रोसेस के बारे में नहीं बताता। वेरी सिंपली, बराबर। इसीलिए व्हेन आई से चिंटू ईट्स अ मैंगो, दैट डज नॉट मीन कि वो अब खा रहा है। ओके, इसीलिए चिंटू ईट्स अ मैंगो। सेकेंड इज चिंटू इज ईटिंग अ मैंगो, अब यहां पे प्रोसेस है। पहले वो आम खाता है क्योंकि समर के दिन है, उसकी आदत है, उसको अच्छा लगता है, जो कुछ भी है, पर अब यहाँ पे when he says that Chintu is eating a mango, that means the process is getting continued, मतलब अब उसने आम खोला है और वो आम खा रहा है,
कुछ शायद रस उसका यहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया, मक्खियाँ घूम रही, ये सब जो चित्र है वो इस टेंस में आने चाहिए. ओके, सो चिंटू इज ईटिंग अ मैंगो, दैट मीन्स करंटली ही इज ईटिंग, नाउ ही इज हैविंग दैट प्रोसेस, वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो सब चीजें. तीसरी चीज इसी टेंस में आगे है कि अभी ही, लेकिन खत्म हो गई. अभी आम खा रहा था, बराबर, खत्म हो गया, कंप्लीशन, द एक्शन ऑफ कंप्लीशन. इसीलिए चिंटू हैज ईटन अ मैंगो, खा लिया. चिंटू हैज ईटन अ मैंगो टेल्स दैट कि अभी अभी खा लिया, बस तुम आए 1-2 सेकंड पहले खा लिया. तो द एक्शन विच इज रिसेंटली कंप्लीटेड, वी कैन इन सिंपल वर्ड से रिसेंटली कंप्लीटेड, अभी अभी फिलहाल वो कंप्लीट हो गई. तो रिसेंटली का मतलब 2 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, तो डिपेंड्स, वो सब डिपेंड करता है कि हम किस टाइमलाइन के बारे में बोल रहे हैं. अगर हम हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं तो कुछ चीजें अभी 4 दिन पहले हुई है तो वो रिसेंट हो गया. पर अगर हम खाने के बारे में बोल रहे हैं तो वो रिसेंट कैसे हुआ, फिर वो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर. तो वी विल बी थिंकिंग अबाउट दैट, डोंट गेट बर्डन. इसीलिए उसकी आदत है तो वो खाता है. हमने पहले भी देखा कि प्रेजेंट टेंस बहुत सारी जगह पे यूज होता है. जैसे कि मुझे अगर कोई हैबिचुअल ट्रूथ कहना है, हैबिचुअल ट्रूथ का मीनिंग ये होता है भाई साहब कि अगर मैं ये कहूँ कि द सन इज द स्टार, इट इज अ हैबिचुअल ट्रूथ. वेस्ट इज अ डायरेक्शन, इट इज अ हैबिचुअल ट्रूथ. यू कैन नॉट चेंज इट. ओके, द टाइगर इज डेंजरस एनिमल. सो दीज आर द थिंग्स जो जिसको हम वास्तविक सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जागतिक सत्य, वैश्विक सत्य. तो ये सब चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती हैं. तो आम उसने खाया, उसकी आदत होगी, आदत के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं. उसके बाद चिंटू इज ईटिंग अ मैंगो, नहीं, अब ये आदत की बात नहीं है, अभी फिलहाल चिंटू ने हाथ में आम लिया है और वो खा रहा है. दैट इज द प्रोसेस. द थर्ड वन इज हियर, इज लाइक चिंटू हैज ईटन अ मैंगो, उसने वो खा लिया अभी, बस एक्शन इज कंप्लीटेड. एंड नाउ दिस वन जो प्रेजेंट टेंस के अंदर ही है, जो हमने प्रेजेंट टेंस का सीक्वेंस और टाइमलाइन देखा, चिंटू हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, दैट मीन्स अभी धूप के दिन है और मौसी ने आपके पास बकेट्स और बास्केट्स ऑफ फ्रूट भेजा है. तो चिंटू हैज बीन ईटिंग अ मैंगो डेली. तो एक प्रोसेस जो शुरू हुई वो अभी तक खत्म ही नहीं हुई, ये बताने के लिए चिंटू हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज हियर. ये बताने के लिए कि एक प्रोसेस जो शुरू हुई थी अब तक खत्म नहीं हुई. वेरी सिंपल. Okay, so this is the timeline, this is the comparative timeline I can say. इसी की बदौलत हम समझ सकते हैं कि हर एक टेंस में क्या चेंज है, क्या बदलाव है. ये एक प्रेजेंट टेंस अगर इस टाइमलाइन के साथ समझा जाए तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस साइमल्टेनियसली. बराबर. इसीलिए प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हमने देखा फॉर्मूलाज, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी. फॉर्मूलाज के 4 प्रकार देखे, उन्हीं के हिसाब से एक ही सेंटेंस को वी हैव टेकन इन एवरी पार्ट ऑफ इट, एवरी सब टाइप ऑफ द प्रेजेंट टेंस. देयर आर 4, बराबर. और चारों के चारों में हमने सेम सेंटेंस रखा, इसीलिए क्योंकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट कौन से चेंजेस टेंस के अंदर हो रहे हैं. ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसको ध्यान देके समझना पड़ेगा. Okay, I'm again going with this, but with another tense. Okay, that is why we can get a clear picture of this. Okay, let's go for it. We are now thinking about past tense. Okay, same thing is here, simple past tense. मैं भले ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ये समझ के ही लिखना है. This is simple past tense because it can stand for simple present tense too. So SPT ऐसे मत याद करना, बराबर. मैं आपको कह रहा हूँ, इसीलिए याद करना ये मैं कहता ही नहीं हूँ. Go for remembrance, okay? इसीलिए that is the better part. Don't mug it up. But if you are not having the any other options, go for that. Simple past tense. Again, coming to this. Simple past tense. The formula is very simple. Subject plus V2 plus object.
nothing is serious, nothing is dangerous. Simple present tense was there. Okay, it was telling us simple subject v1 and object. Now what it is saying? It is saying that subject v2 plus object. What we have to do, what the changes we have to do is very simple, that v1 के जगह पे v2 लगाना है. इसके लिए now the part has come जहाँ पे मैं आपको explain कर सकूँ कि इसके लिए you ought to know this. This is very very essential for this, very essential for this. And for that matter, I would suggest to you that daily have 20 verbs and उनके ये चारों स्वरूप आप लिखो. ing का आप कम से कम प्रैक्टिस करो, doesn't matter because you know ing ऐड करके कोई भी कर सकता है, but ये 3 जो फॉर्म्स है, because there are n number of verbs, तो उनका फर्स्ट फॉर्म कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा. अगर मैं आपको बोलूँ स्प्रेड, तो आप सडनली जिनको पता नहीं होता है दे विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड कि स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तो इसमें सेकंड फॉर्म कैसे ढूंढना, थर्ड फॉर्म कैसे ढूंढना, हिट हिट हिट, कट कट कट. उसके अलावा भी कुछ है जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, किन्हीं का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग है. तो इसीलिए दिस इज वन सेपरेट बेसिक चैप्टर जो आपको हर रोज करना चाहिए. इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको टेंस पढ़ना है तो यू ऑट टू गो विथ 20 वर्ब्स डेली, जिसके आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों फॉर्म्स की प्रैक्टिस करेंगे. और क्या करना है, विल बी सेइंग जस्ट गो विथ दिस. पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत ही हम चिंटू को नहीं छोड़ने वाले हैं, बराबर. इसीलिए क्योंकि हमको टाइमलाइन और कंपैरेटिव टाइमलाइन ध्यान में आए, बराबर. इसीलिए एग्जांपल के साथ चले जाते हैं. अब इधर EX वगैरह नहीं करते बैठे. सब्जेक्ट चिंटू, V2 ate a mango. You cannot find a change in the subject and the object. Why? Because they're gonna be same whether it is present, past or future. एक बात क्लियर. इसीलिए ध्यान कहाँ पे लगाना है हमको. अगर वो अर्जुन की तरह सिर्फ वो पोपट की आंख दिखी तो हम बेहतर है. अदरवाइज ये चिंटू अगर बदलेगा तो क्या होगा फ्यूचर में, पास्ट में आएगा तो क्या होगा, मैंगो के साथ क्या करना. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, बी क्लियर. जस्ट मेक श्योर योरसेल्फ दैट यू हैव टू फोकस ऑन दिस. तो फॉर्मूला क्या कहते हैं उसके ऊपर भी हम चले जाएंगे. सब्जेक्ट बदल नहीं रहे और ऑब्जेक्ट भी बदल नहीं रहे. इसीलिए बदल नहीं रहे क्योंकि हम समझे कि हमको किस चीज का डर निकालना है, और वो चीज सिर्फ यहाँ पे है. ओके, सो चिंटू एट अ मैंगो, वेरी सिंपल. हम उसको फिर समझ लेंगे एक बार टाइमलाइन के साथ. यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम थिंग है. मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है. इसीलिए SPT PCT ऐसे हमको याद नहीं करना है. हियर वी आर शॉर्टनिंग एवरीथिंग, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बराबर, उसका फॉर्मूला इस तरह से जाएगा. S, that means S stands for subject, then was, were. Just before we have learned am is are. यहाँ पे हमने was were लिया, ये भी to be के ही स्वरूप है. These are the forms of to be. Okay, we have seen earlier in the part 1. Was were because we are seeing the past, and we will be seeing will and shall in future. Very simple. एक ही साथ आपको ये पता चल गया, you will be knowing all. So subject was were plus V4 plus object. Now when I am saying this so fast, subject was were plus V4 plus object, don't get confused. आप भी इसी तरह से बोलोगे, बिलीव मी. ये चीज मगब की नहीं है, इसीलिए दिस हैपेंस. तो लेट मी गेट इनटू द प्रैक्टिस. सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V4 प्लस O goes for Chintu was. Why was? Just because कि he is singular. अगर अलग कितने सारे चिंटूज होते तो we would have taken were और पहले वाले में are. तो दिस इज वेरी सिंपल. ओके, सिंगुलर प्लूरल का गेम है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है. हर जगह पे आएगा ही, हर सेंटेंस में आएगा. तो आपको आपके सामने फॉर्मूलाज रहने वाले नहीं है जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे, जब आप पर्टिकुलरली बोलोगे. अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो तब आपके सामने फॉर्मूलाज नहीं और याद करने का वक्त भी नहीं रहेगा. तो दिस इज प्रैक्टिस के साथ सब कुछ होने वाला है.
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो चिंटू वॉज वर्ड निकाल गए. अब बिफोर ईटिंग a mango. What is the change, buddy? Nothing. Just this. Just this. Compare, always compare the same subtype of a tense. For example, अगर मैं past tense का कोई tense subtype अगर compare कर रहा हूँ, जैसे कि simple past tense, उसको मुझे compare करना है simple present और simple future के साथ. Very simple. अब जाओ, आपके पास अगर लिखा होगा, आपने नोट्स निकाले होंगे, आई बिलीव. चिंटू वॉज ईटिंग अ मैंगो. इसमें चेंज क्या हुआ? क्यों नहीं डरना है टेंस के लिए? वेरी सिंपली, यहां पे सिर्फ हमने लगाया था इज और यहां पे हमने सिर्फ चेंज किया है वॉज. हालांकि पूरा का पूरा सेंटेंस कुछ अलग बताता है, लेकिन फिर भी अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें तो हमने सिर्फ इज की जगह पे वॉज रखा और हम फ्यूचर में भी यही करने वाले हैं. तो किस चीज से डरना है यह आपको ध्यान में रखना है. इसीलिए हमने सेम सेंटेंस रखा. दिस टेक्निक विल टेक यू टू अनदर लेवल. ओके, वेरी सिंपल टेक्निक दिस इज. इसमें कुछ बड़ा कॉपीराइट जैसा कुछ है नहीं. इसीलिए चिंटू वॉज ईटिंग अ मैंगो. बराबर. आगे जाकर इफ वी से दैट पीसीडी सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें कोई दो राय नहीं, ना हैव ना हैज. पास्ट के अंदर हैड, खत्म. ही शीट के लिए भी हैड. तो इट इज मेकिंग अस वेरी सिंपल टू गेट रिमेंबर्ड. ओके, नाउ हैड के बाद V3 और ऑब्जेक्ट. What is the change? I'm again and again saying this. This is the change. Otherwise, V3 was there in perfect, present perfect tense, and now, so there is no change in V3. It won't even change in future tense. So आपको किस चीज का डर निकालना है? Again and again saying this. इसीलिए be clear about this. Okay, come with this. Subject had V3 O. Chintu had, sorry, plus has come here. Chintu had eaten. Buddy, go with your back notes. Nothing we have changed. Just this one. Had बदला है हमने, बाकी कुछ नहीं. As it is है, वहाँ पे has था, यहाँ पे had है. बराबर. Chintu had eaten a mango. Can you see? हमने एक ही सेंटेंस लिया तो हमको पता चल रहा है किस चीज के बारे में हमको डर निकालना है. डर निकला, प्यार आ गया. प्यार आ गया, आपको टेंस आ गया. टेंस आ गया, आपको इंग्लिश का बड़ा सारा रास्ता खुला हो गया. Isn't it? Come with this. अब आगे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी सोचेंगे. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दूसरा. V4 सॉरी और ऑब्जेक्ट. कुछ भी नहीं बदल रहा है. अगेन एंड अगेन वी आर जस्ट सीइंग दैट हैड बीन हैज चेंज्ड, नथिंग एल्स. इसीलिए चिंटू हैड बीन ईटिंग अ मैंगो. Look how simple this is. So, Chintu had been eating a mango. Subject had been plus V4 plus O. Now tell me, just see all your notes. Pause the video. You can do this. Okay? See your notes and then see. If you haven't taken the notes, you have the digital classrooms. You can pause it. You can replay it. It's in your hand. So just go for this. Just make sure yourself. This is the way where you can understand कि past tense, present tense और future tense ये कुछ भी मुश्किल नहीं है. It's very very simple. Okay, and this is what can make you become, you know, अंदर से भी आपको एक confidence आ जाएगा. Now we'll be going with the last but not the least, future tense. Okay, are you ready for this? Just go with it. Okay guys, we are just focusing on number last
tense, the stage, the last stage of the tense, I must say, and that is future tense. Okay. Even on social media and all, future and nature, you might have seen that. Okay. So future tense, let it be aside. We have the life to live. Future tense tells the same thing. Simple future tense. Okay. The second one, future continuous tense. The third one, future perfect tense. And the fourth one, future perfect continuous tense. Again, don't get it with बराबर, इसके साथ आपको कोई संबंध नहीं रखना है. आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिंपल टेंस, आपको सिर्फ याद रखना है कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फिर उसके आजू बाजू आपको पास्ट लगाना है, प्रेजेंट लगाना है, फ्यूचर लगाना है. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, वेरी सिंपली. तो इसीलिए वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, एंड आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन. बिलीव मी, it's a headache. That's it. Come on with this. Future tense, okay? Simple future tense. Subject plus V1, subject plus will oblique shall plus V1 plus object. The only change we can see here is this. Just because it is not part of past and present, we ought to use will and shall here. Unless and until we will use something, we cannot get that it is from future. So we have added here will and shall. Okay, so subject plus will shall plus V1 plus object. So here also you don't have to go so far for the V1. V1 is always there. V1 is well known. Okay, everywhere. Take any of the words. Eat, run, sleep, anything. Okay, come on this. So, for example, we can say that Chintu. We don't have to forget Chintu. Chintu will or shall. You can use anything. Literally, believe me. Earlier it was like a shall. I के साथ, we के साथ चलेगा फिर will. Now nothing is there. You can use anything anywhere. So specifically, we'll be going with will just because it is a good word. Okay. Chintu will eat. Why eat? Just because the formula is saying that. V1 ले लो. Simple. Chintu will eat a mango. Mango is going to meet to eating again and again. Sorry for that. Chintu will eat a mango. Okay. The second thing is subject plus will be plus V4 plus object. You can see this. This is the only change. Subject past continuous में भी था, present continuous में भी है. यहाँ पे सिर्फ इतना बदला है. V4 वहाँ पे भी था, past में भी और present में भी, और object तो हर जगह पे था. So what we have to think, what we have to focus is this. Let's see it. So Chintu will be V4 है भाई, eating a mango. Very simple. Okay. Third one, we'll be going fast. Subject plus will have, shall have will be also there. So I'm not getting it into it. Let it be. V3 plus O. That means Chintu will have eaten. Why eaten? V3. They are saying into the formula V3. Eaten a mango. And last but not the least is subject plus will have been plus V4 plus object. Very simply, that means Chintu
will have been eating very simple. Okay, now let me check to you to this. Now we have seen all of the tenses, correct? We have seen the timelines, correct? The first thing that we did with present tense, we didn't do with past tense. And again, for your kind understanding, I'm gonna do that again. Here, we have seen same sentence we have taken first. Why? I am telling you again and again, again and again, and again and again. Second, we have also taken the formulas, but not seriously. Just because, okay, this is the thing you can get anywhere. There are n number of things, there are n number of books, there are n number of processes, courses for English study. So when you will be hitting any a book, you will be getting this. That is why we haven't focused on that too. Otherwise, what is there to be focused? You can pause your video, you can just write it down. So, the main portion which should be getting understood is the very first when we saw, I think, present tense. I told you that was the process of that time, but it is not getting continued. Barabar. Secondly, in continuous tense, it is getting continued. So again, we'll be seeing here, अगर मैंने कहा कि चिंटू will eat mango, so in future he will eat a mango. That doesn't mean that process will be continued, but I just know about that कि चिंटू will eat a mango. हालांकि उसके मौसी ने उसको आम भेजा तो वो खाएगा, लाया है तो खाएगा. यहाँ पे the second thing, continuous tense. I am again saying this. हम इसको sum up करेंगे तब भी देखेंगे. चिंटू will be eating a mango. वो प्रोसेस जो प्रेजेंट टेंस में चल रहा था, बराबर चल रहा है, सॉरी, पास्ट टेंस में चल रहा था, वो आम खा रहा था, अभी आम खा रहा है, ऐसे लहूलुहान, ऐसे रस से भरा हुआ है, सॉरी लहूलुहान के लिए. एंड यहाँ पे चिंटू विल बी ईटिंग अ मैंगो. दैट मीन्स अब जो उसका अवतार है कि वो खा रहा है, यहाँ से मक्खियाँ घूम रही है, वो होने वाला है. दैट प्रोसेस इज गोना बी पॉसिबल, इट्स गोना बी गेटिंग. ओके, इसीलिए चिंटू विल बी ईटिंग अ मैंगो. आगे when I'm saying about future perfect tense, again perfect tense, that means the completion. भविष्य के अंदर वो चीज पूरी हुई हो, complete, and that is why we are saying here चिंटू will have eaten a mango. इस वक्त पे तो चिंटू ने खा लिया होगा आम. कल आने वाले 4 दिनों के अंदर, by for example 3 बजे से पहले चिंटू ने खाया होगा आम. completed action, but कब? फ्यूचर में. इसीलिए ये जो डिफरेंसेस है, दे आर विद द टेंसेस, द फेजेस, आई मस्ट से. इसीलिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बस इतने में ही चेंज हमको ध्यान में रखना है. सिंपल, आपको बहुत ही सिंपल उस वक्त के बारे में बताएगा. पास्ट है तो सिंपल पास्ट, अभी घटी हुई घटना. प्रेजेंट है तो आपकी आदतें, आपका स्वभाव, आपके नैसर्गिक सत्य, नेचुरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ यू कैन से. कंटिन्यूअस टेंस आपको बताएगा कि द प्रोसेस विच इज गेटिंग कंटिन्यूड. द प्रोसेस वेरी सिंपल. पास्ट में होगी तो हो रही थी, प्रेजेंट में है तो हो रही है, फ्यूचर में है तो होने वाली है. थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस, दैट मीन्स देयर इज नो एनी ब्लेमिंग एरिया. वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर आप कुरेद नहीं सकते. पास्ट में है तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी है तो अभी कंप्लीट हो चुकी है, और फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी. फोर्थ वन इज हियर, चिंटू विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो. चिंटू भविष्य में एक दिन शुरू करेगा खाना तो आज की तरह या कल की तरह वो खाता ही रहेगा. एक्शन वुडंट बी कंप्लीटेड. ये एक्शन चलती ही रहेगी, इसीलिए कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा? वेरी सिंपली, चिंटू विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो. तो वो कंटिन्यूअसली वो आम खाता रहेगा. वो आम का मतलब सिर्फ वो आम मत लो, बट ही विल बी ईटिंग दैट. Okay, so there are a number of things like this. Again, I am saying simple future tense है,
या फिर प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, सभी का स्वभाव एक ही है। इसीलिए हमें समझना इतना है, तीन मेन टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके बारे में किसी को दो राय नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर? टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि फ्यूचर सिंपल टेंस है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रोसेस, ये आपको ध्यान में ही रखना है। थर्ड वन, परफेक्ट टेंस, कंप्लीट, कंप्लीटेड जो है उसी को कहेंगे। इसलिए जब भी आप बोलने की कोशिश करोगे, जब आप लिखने की कोशिश करोगे, यू विल बी नोइंग दिस पार्ट कि अरे हाँ, दिस एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। सो आपका भले ही थोड़ा सा गलत भी हो जाए, लेकिन आपको इतना पता होगा कि परफेक्ट टेंस ही यूज करना है। यू माइट बी गेटिंग फेल्ड एट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, बट यू विल बी गेटिंग परफेक्ट इनटू दिस। सब टाइप आपको आ गया, खत्म, वेरी सिंपल। एंड द लास्ट वन इज कि कोई एक प्रोसेस शुरू हो रहा है लेकिन खत्म ही नहीं हुआ है, तो वो अगर पास्ट में हुआ है तो भी हो सकता है, अभी हो रहा है खत्म नहीं हुआ तो वो तो बहुत सिंपल है। फ्यूचर में वो होने वाला है और खत्म नहीं होने वाला है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। इसके अलावा जो भी आपको आने वाला है वो शायद आपको ऐसे आएगा, सिंपल पास्ट टेंस है, इसको आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है, तो उसको आपको सिंपल क्या करना है, मेरी तकनीक में अगर बताऊं, सिंपल पास्ट को मैं खुद करूंगा पास्ट परफेक्ट और फिर मैं करूंगा फ्यूचर परफेक्ट। तो दैट इज वेरी सिंपल वन, दैट इज वेरी सिंपल पार्ट ऑफ इट, ओके, एंड दैट विल मेक द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस। टेंस पढ़ रहे हो, मैंने जैसे बोला आपको कुछ बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मंत्र वाला चैप्टर, ये आपको याद रखना है, आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ याद रखनी है, आपको V1, V2, V3, V4 डेली 20, मैंने कहा डेली 20 अलग वर्ब्स को आपको जाना पड़ेगा। बिलीव मी, ये सब करते करते यू विल बी गेटिंग परफेक्ट इन सो मेनी थिंग्स। हियर यू हैव टू थिंक अबाउट सो मेनी नाउन्स, तो नाउन्स आपका तो इसीलिए दिस इज यू नो ऑल गोइंग प्रोसेस, दिस इज वास्ट प्रोसेस, ओके। So this is all we can think about it. This is all we can learn about it. With this, again I am saying, if you are getting confused between things, because tense चीज ही ऐसी है, वो साथ में लिखेंगे थोड़ा सा राइटिंग में मगर वो मिक्सअप हो जाएगा, doesn't matter, doesn't really matters. इसीलिए आपको again I am suggesting that you go with this. Have your videos getting paused, उसको pause कीजिए, हर एक चीज़ को रिपीट करके देखिए। You will be finding this lecture very helpful to get the tense, and believe me, अगर आप इन सब प्रोसेस के साथ चले जाओगे, if you are following the basics, if you are going for the particular told process, I am saying told process, तो believe me, you are gonna kill this, you're gonna nail this, okay. This is how the tension of the tense should be reduced. Thank you for this, have a good day. Again, take care of yourself, be precautious, okay, and also follow the instructions of the government. Thank you.